Class 6th SST, the Earth in the Solar System. Complete explanation in Hindi. How wonderful is it to watch the sky after sunset? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with the tiny shiny objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with the diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as the others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. ये पैराग्राफ हमको ये बता रहा है कि हमारा नेचर कितना ब्यूटीफुल है. स्काई, आसमान में जैसे ही सनसेट होता है, जैसे ही सूरज डूबता है, तो पूरे आसमान में पहले हल्के हल्के डॉट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ने लगता है. पूरा आसमान शाइनी ऑब्जेक्ट से फिल हो जाता है. कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ बहुत डिम शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इन्हीं शाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार्स बोलते हैं. कुछ ट्विंकल करते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं भी करते हैं. Along with these objects, you may also see the moon on most of the days. और इन सब के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम आसमान में चंद्रमा को भी हर दिन देखते हैं. It may however appear at different times in different shapes. पर चंद्रमा जो होता है वो हर टाइम अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग पोजीशंस में भी दिखाई देता है. The full moon only once in about a month. It is full moon night or Purnima. यहाँ पे क्वेश्चन है, what is a full moon night or a Purnima? पूरे महीने में एक बार पूरा चांद दिखाई देता है, उसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर, उसके 15 दिन बाद. यू कांट सी इट एट ऑल, उसके 15 दिन बाद चंद्रमा. यू कांट सी इट यानी क्या? इट यानी यहाँ पे मून है. वी कांट सी मून एट ऑल. मून को हम नहीं देख सकते. इट की जगह पे क्या आएगा? मून. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. अमावस्या यानी क्या होता है? जब आसमान में चांद दिखाई नहीं देता, उसे न्यू मून नाइट या अमावस्या बोला जाता है. You can watch the night sky best provided it is clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? अब यहाँ पे नया क्वेश्चन है कि हम दिन के टाइम में चंद्रमा और बाकी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख सकते. तो इसका आंसर है ये, it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these objects in the डे. और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो हमको दिखाई देते हैं वो सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं. इसका मतलब दिन के टाइम पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर सन की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को दिन के टाइम पे नहीं देख सकते हैं. ये इसका आंसर हुआ. नाउ नेक्स्ट, the sun and moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body or heavenly bodies. तो what are celestial bodies or the heavenly bodies? The sun, moon और जो भी आसमान में जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं उनको celestial body या heavenly objects बोला जाता है. Celestial bodies are very big and hot. What are the properties of celestial bodies? यहाँ पे क्वेश्चन है, what are the properties of celestial bodies? तो some celestial bodies are big and hot, पहला पार्ट. सेकेंड पॉइंट, they are made up of gases. वो किससे बने हुए रहते हैं? गैसेस से बने हुए हैं. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, they have their own light which they emit in large amount. उनकी खुद की अपनी लाइट होती है और हीट होती है जो वो बहुत ज़्यादा emit करते हैं. These celestial bodies को हम क्या बोलते हैं? स्टार. तो what are stars? The celestial bodies in the sky are called as stars and the sun is a star. यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ. Please write down these questions. What are celestial bodies? Write the properties of celestial bodies. जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ आएगी.
कि these are big and hot. Second, these are made up of gases. Third, they have their own and light which emits in the large amount. What is a sun? Sun is a star, or sun is, these celestial bodies are also known as star. ये पूरा पैराग्राफ जो होगा that is a write a note on celestial bodies भी होएगा. Now, countless twinkling stars in the night sky are similar to that of sun. जो आसमान में चंद्र तारे चमकते हैं वो भी सन के समान ही होते हैं. तो हमको जैसे सन की तेज हीट और लाइट दिखाई देती है, वो दूसरे स्टार्स की क्यों नहीं दिखाई देती है? वाई, ये क्वेश्चन है कि वाई डोंट वी फील द हीट एंड लाइट ऑफ द अदर स्टार्स. हम दूसरे स्टार्स की हीट एंड लाइट को हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं? द आंसर इज दोज स्टार्स आर टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हमसे बहुत दूर हैं. सन से भी, जो सन हमसे जितना दूर है उससे कहीं ज़्यादा दूर वो दूसरे स्टार्स हैं. इसके लिए उनकी हीट और लाइट हम तक की नहीं पहुंचती जितनी कि सन की पहुंचती है. You must have noticed that all the objects look smaller when we see from a distance. सभी ऑब्जेक्ट हमको छोटे दिखाई देते हैं जब हम दूर से देखते हैं. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. एक एरोप्लेन भी हमको बहुत छोटा दिखाई देता है जब हम उसे दूर से देखते हैं. While watching the night sky, you may notice, जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं. क्या नोटिस करते हैं? तो वो पॉइंट्स हैं. वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. आसमान में कई पैटर्न बनते हैं स्टार्स के द्वारा, उन्हें कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज? उर्सा मेजर और बिग बियर. उर्सा मेजर और द बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन. ये इसका एग्जाम्पल है. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइज, दूसरा जो कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है दैट इज़ सप्तऋषि, जिसको हम 7 स्टार्स भी बोलते हैं. पहला एग्जाम्पल कौन सा है? उर्सा मेजर और बिग बियर. सेकंड कौन सा है? सप्तऋषि आर दी सप्त मीन 7, ऋषि मतलब सेग यानी साधु संत. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप माना जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन. तो व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन का आंसर क्या हुआ? वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग बियर. सेकेंड सप्तऋषि आर द सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेग, is a group of 7 stars. Ursa Major, ask someone elder in your family or neighborhood to show you how you more stars, planet or constellation in the sky. In the ancient time, पुराने ज़माने में people used to determine the direction during the night with the help of stars. पहले ज़माने में इन्हीं stars का कैसे यूज़ होता था? लोग रास्ता पता लगाने के लिए करते थे. कैसे? द नॉर्थ स्टार जो होता है दैट इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और उसको पोल स्टार भी बोला जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ पोल स्टार? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार. ये इसका आंसर होएगा. It always remains on the same position in the sky. और ये हमेशा same position में रहता है sky में. We can also locate the position of pole star with the help of Saptarishi. Look at the figure 1.1. वहाँ पे you will notice an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further it till to the point of pole star. तो ये डायग्राम में हम देख लेते हैं कैसे है. ये सप्तऋषिज हैं, ये 7 स्टार्स हैं. इसी के पॉइंट को अगर हम सीधा देखते हैं तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार. इस तरीके से हम सप्तऋषि की मदद से भी पोल स्टार को आसमान में फाइंड आउट कर सकते हैं.
It always remains same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि. ये हमने डायग्राम में देख लिया. Now, some celestial bodies do not have their own sun and light, and they are lit by the light of the stars, and these are called planets. यहाँ पे क्वेश्चन है what are planets. उसका आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के. कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो आसमान में बॉडीज़ दिखाई देते हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो लिट होती हैं, वो चमकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्टार की लाइट से. उसको हम प्लैनेट बोलते हैं. द प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटई which means the wanderers. wanderers यानी जो गोल गोल घूमते हैं. the earth on which we live, जो हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, और इसको भी लाइट कहाँ से मिलती है? एक स्टार से मिलती है, विच इज़ अ सन. और क्योंकि सन जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है. तो अगर राइट अ नोट ऑन प्लैनेट्स आता है तो हम पूरा यहाँ तक के लिख सकते हैं. डिफाइन आता है तो हमको यह आंसर यहाँ से लेके, अगर सिर्फ डिफाइन आता है तो आंसर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के लिखना है. और उसमें एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं कि अर्थ इज़ अ प्लैनेट. नाउ द मून दैट वी सी इन द स्काई, जिस मून को हम आसमान में देखते हैं वो क्या है? इज़ अ सैटेलाइट. सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट, भगवान के द्वारा बना हुआ सैटेलाइट. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है. हमारी अर्थ को देखो, अर्थ के साथ 8 अदर प्लैनेट्स होते हैं, उनको भी सन जो है वो हीट और लाइट देता है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स, उसमें से कुछ के पास अपने मून्स भी हैं. जैसे हमारी अर्थ के पास एक मून है, और वैसे ही कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास मोर देन 1 मून भी है. अभी हम बढ़ते हैं आगे. द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी सन की पूरी फैमिली. द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroid form the solar system. और इसी को सोलर फैमिली बोला जाता है. and sun is the head of its family. what is the solar system का आंसर हुआ. सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, 8 planets हैं, planets के अपने सैटेलाइट्स हैं, और तो बाकी जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स, ये हम आखिरी में चैप्टर में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं. ये सब मिलके सोलर सिस्टम को बनाते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, जिनके चारों तरफ रिंग्स होती हैं. ये रिंग्स किस चीज़ से बनी रहती हैं? बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबरीज. डेबरीज यानी गैस, धुआं, आग. इसके अलावा स्टोन्स, रॉक्स, इस टाइप के छोटे छोटे स्मॉल डेबरीज की रिंग्स बनी हुई रहती हैं. दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप. पावरफुल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की मदद से, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप, पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से इन रिंग्स को देखा जा सकता है. ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर शोज द कंप्लीट सोलर सिस्टम. इस सोलर सिस्टम में ये जो पिक्चर है, दिस इज सन. सन के बाद यहाँ जो दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे, रिंग्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं. इन एक एक रिंग में एक एक प्लैनेट मूव करता है. ये जो प्लैनेट्स मूव करते हैं ये उसकी ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो मूव करते हैं. ये ऑर्बिट्स ऐसे बनी हुई नहीं रहती हैं, पर इसी लाइन पे वो मूव करते हैं. तो ये सन के सबसे पहले जो है वो है मर्क्यूरी. उसके बाद पीछे वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद बीच में एस्ट्रॉइड की एक लेयर दिखाई दे रही है. एस्ट्रॉइड्स लास्ट ऑफ चैप्टर, आखिरी टॉपिक है चैप्टर का. नेक्स्ट जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो पूरा पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कंप्लीट सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी, 1 ऑर्बिट अराउंड सन
88 डेज, यानी मर्क्यूरी को सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। 1 स्पिन ऑन एक्सिस, यानी मर्क्यूरी को अपने चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, स्पिन यानी खुद के चारों तरफ गोल घूमना, उसको 59 डेज लगते हैं। सेकंड, वीनस, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज, वीनस को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 255 डेज लगते हैं। एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस के लिए 243 डेज। थर्ड, अर्थ, हमारी अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 1 साल कंप्लीट यानी 365 डेज लगते हैं, और एक स्पिन के लिए उसको 1 दिन लगता है। और हमारे पास नंबर ऑफ मून्स हैं 1। फोर्थ, मार्स, 1 ऑर्बिट अराउंड सन करने के लिए 687 डेज, एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस के लिए 1 डे, जैसे हमको पूरा 1 डे लगता है अपने चारों तरफ घूमने में। यानी मार्स और अर्थ की अप्रॉक्सीमेट साइज सेम है। 1 स्पिन ऑन एक्सिस के लिए 1 डे, एंड नंबर ऑफ मून्स मार्स के पास कितने हैं? 2। ये जो सब प्लैनेट्स हैं, दीज आर वेरी क्लोज टू द सन, ये सन के एकदम पास में हैं, और दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक के बने हुए प्लैनेट्स हैं। फिफ्थ इज जुपिटर, 1 ऑर्बिट अराउंड सन के लिए 11 ईयर्स लगते हैं। ये 11 ईयर्स 11 मंथ हैं, या अबाउट 12 ईयर्स लगते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दीज आर आउटर प्लैनेट्स, ये फार फार बहुत दूर हैं सन से, और ये बहुत ह्यूज भी हैं। 1 स्पिन ऑन एक्सिस और अपने चारों तरफ घूमने में 9 आवर 56 मिनट्स, और नंबर ऑफ मून्स जुपिटर के कितने हैं? अराउंड 53, अबाउट 53। नेक्स्ट इज सैटर्न, एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए उनको 29 ईयर्स और 5 मंथ्स लगते हैं, और अपने स्पिन के लिए 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? दैट इज अबाउट 53। नेक्स्ट इज यूरेनस, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स, और स्पिन के लिए अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स, एंड नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27। Next is Neptune, 1 orbit around Sun 164 years, 1 spin on axis 16 hours 7 minutes, and number of moons 13। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से कई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एक सबसे सामने कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। नंबर ऑफ मून्स किस में ज़्यादा हैं, और मार्स में कितने मून्स हैं, अर्थ पे कितने मून्स हैं, और इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। हमने सोलर सिस्टम और पूरी फैमिली, सोलर फैमिली पढ़ लिया। उसमें क्या पढ़ा? द सन जो है दैट इज स्टार, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, एंड कुछ सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ये सब जो है एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, और सोलर फैमिली के जो हेड हैं वो हैं सन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सन के बारे में। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन कहाँ पे है? इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और उसके चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट्स हैं जिसमें सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं। ये बहुत ह्यूज है, और सन किससे बना हुए हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अभी ये क्वेश्चन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स कैसे घूमती हैं? एक फोर्स होता है, सन जो है, सन के पास एक फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है, वैसे सन का भी एक फोर्स है जो सोलर सिस्टम पे सभी को बांध के रखता है, पूरे जो प्लैनेट्स हैं उनको बांध के रखता है। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, किसके लिए? पूरे सोलर सिस्टम के लिए। यानी हमको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। But that tremendous heat is not felt so much by us, because despite being our nearest star, it is far away from us. तो सन की इतनी तेज हीट और लाइट हमको क्यों नहीं महसूस होती है? इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि चाहे हम सन से बहुत पास में हैं, वी आर द नियरेस्ट स्टार, यानी अर्थ इज़ द नियरेस्ट स्टार, लेकिन फिर भी हम सन से बहुत दूर हैं। दैट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। सन कितना दूर है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसकी वजह से ट्रमेंडस हीट जो है वो हमारे प्लैनेट तक के नहीं आती। प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम पे? देयर आर
8 planets in our solar system. Question: how many planets are in our solar system? 8. Name those planets. तो उसको लर्न करने के लिए यहाँ एक लाइन लिखी है जिसके हर कैपिटल वर्ड से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का नाम आता है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. माई फॉर एम फॉर मर्क्यूरी, वेरी वी फॉर वीनस, ई एफिशिएंट, ई जो है दैट इज फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस के से यूरेनस एंड नट्स से नेपट्यून. ये एक तरीका है सभी सोलर सिस्टम के नाम लाइन वाइज लर्न करने के लिए. All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed orbit. सारे के सारे planets fixed orbit पे move करते हैं, fixed path पे move करते हैं. और ये जो path है वो elongated यानी ये circular यानी ये होता है. अगर हम elongated बोलेंगे तो elongated यानी इस तरीके का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज elongated. elongated पाथ पे ऑर्बिट्स मूव करती हैं. तो डिफाइन ऑर्बिट यहाँ पे क्वेश्चन है. ऑल द 8 planets of our solar system move around the sun in the fixed path and these fixed elongated paths are known as orbit. Next question. Which is the nearest planet to the earth? Answer. Mercury is the nearest planet to the earth. It takes how many days to complete one round along its axis? It takes at 88 days to complete one round around its axis. Venus is considered as Earth twin. Earth twin यानी अर्थ के जैसे planet. तो name the planet which is considered as Earth twin. तो name the planet में आंसर क्या रहेगा? Venus. Venus is considered as Earth twin. Why Venus is considered as Earth twin? तो इसका आंसर है यहाँ से because the size and shape are very much similar to that of Earth. क्योंकि Venus की जो साइज और शेप है वो करीब करीब अर्थ के जैसी है. Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet. 2006 तक हम प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर करते थे. पर एक मीटिंग हुई किसकी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. नेम द मीटिंग इन विच द प्लान अबाउट प्लूटो. International Astronomical Union. A decision was taken that the Pluto, like other celestial bodies discovered in the recent past, may be called the dwarf planet. Name the planet which is known as dwarf planet. Pluto is considered as dwarf planet. And when it was considered as dwarf planet? In a meeting held in the International Astronomical Union. ये वाले इसके आंसर्स रहेंगे. यहाँ पे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े? नेम द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी. नेम द प्लैनेट विच इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन, वीनस. नेम द प्लैनेट विच इज नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट, दैट इज प्लूटो. And why it is known as dwarf planet? Because its size is comparatively lesser than other planets. Now next, the Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Its size is, it is the 5th largest planet. Size में 5th सबसे बड़ा planet है. It is like its shape कैसी है Earth की? The shape of the Earth is geoid. What do you mean by geoid? It is not completely circular. It is slightly flattened at the poles. ये पूरा ऐसे गोले जैसा नहीं है, ये इस तरीके से है, slightly flattened at the poles. Geoid shape है. It is slightly यानी sides में ऐसे bulge है और side और यहाँ पे ऐसे slightly flattened at the poles. The shape is known as the geoid shape. कैसी अर्थ की shape? The Earth's shape is like geoid. Why it is geoid shape? Because it is slightly flattened at the poles. And which is the third? Earth is third nearest, सबसे third nearest planet है sun से, and its size is 5th largest planet. Earth is a unique planet. इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे. अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों माना जाता है? क्यों? Conditions favorable to the Earth to the support life are probably found on the Earth. जो conditions जिंदगी को सपोर्ट करती है
वो अर्थ पे ही पाई जाती है। यानी ज़िंदगी जितना हम जानते हैं अभी तक के उसमें अर्थ पे ही पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है वो ज़्यादा न ठंडी है न ही गर्म है। ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ इट इज़ अ सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। थर्ड पॉइंट, अर्थ पे वाटर और हवा है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अर्थ की एयर में एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, दैट इज़ ऑक्सीजन। इसी वजह से जो अर्थ है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका आंसर है द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड हाउ या डिस्क्राइब इट। तो उसका आंसर है ये पूरा पैराग्राफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द आउटर स्पेस the earth appears blue. What is the color of the earth? Earth appears blue. What is the color of the earth? Earth appears blue. क्यों? Why the earth appears blue from the outer surface? The answer is because 2/3 of the earth's surface is covered with water and hence it is also known as blue planet. The 2/3 surface of the earth is covered with water and hence therefore it is known as the blue planet. ये हुए अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। Earth is a unique planet. Earth is a blue planet. What is the shape of the Earth? Geoid. Earth is the third nearest planet and fifth largest planet. Now some questions of do you know? Sol in Roman mythology is sun god. Solar means related to the sun. Solar and the family of the sun is therefore called the solar system. Why the earth is known as the solar system, from where the name arises? Sol is a Roman mythology में Sol means sun god और हमारा सोलर सिस्टम में जो सन है दैट इज़ द मेन है जिसकी वजह से हम बाकी सब एग्जिस्ट करता है। तो हैंस द सोलर सिस्टम जो नेम है दैट अराइज फ्रॉम दीज वर्ड्स। नाउ वर्ड ओरिजिन, many words used in language may have been taken from some other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek. Geography का origin कहाँ से? Greek से. Which related to the description of the earth. It is made up of two words. जो geography है, it is made up of two words. G meaning earth, graphia meaning writing. जोग्राफी यानी अर्थ के बारे में राइटिंग। जियोलॉजी, जियोलॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड मीन्स रिसेंबलिंग टू द शेप ऑफ द अर्थ। These are the some definitions may ask in your exam. Now, humans have always fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial body and their movements are called astronomers. So what are astronomers? Those persons who study the celestial bodies and their movement are called the astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer in ancient India. जिसने हमको सबसे पहले बताया था the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. मून और प्लैनेट इसीलिए चमकते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और जो लाइट उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है दैट इज़ द सनलाइट। आज भी सभी एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं और पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट एंड दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट एक ही है दैट इज़ मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 पार्ट यानी अर्थ जितनी है उसका 1/4 जो है वो मून है। लेकिन हमको बड़ा दिखाई देता है जबकि बाकी स्टार्स हमको छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ से बहुत पास में है और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बहुत दूर हैं अर्थ से।
इसलिए हमको मून जो है उसका शेप बड़ा दिखाई देता है और बाकी स्टार्स का शेप छोटा दिखाई देता है, इवन दो बाकी स्टार्स बड़े हैं। इट इज़ अबाउट 384,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance from the earth and sun and the moon. The moon moves around the earth in about 27 days. Moon अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27 दिन में। It takes, ये आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। It takes the same time to complete one spin, और इतना ही टाइम उसको अपना स्पिन भी कंप्लीट करने में, यानी अपने चारों तरफ घूमने में भी उसे उतना ही टाइम लगता है। इसलिए हमको एक साइड ऑफ द मून ही हमेशा दिखाई देता है। द मून के पास जिंदा रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो नहीं है। वहाँ पे न पानी है, न ही हवा है, और न ही फेवरेबल कंडीशंस है जिसमें कोई ज़िंदा रह सके। वहाँ पे क्या है फिर? तो वहाँ पे है मून का जो सरफेस है, दैट इज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, यही मून सरफेस पे शेडो भी बनाते हैं। Do you know, light travels at the speed of about 3 lakh km per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. इतनी तेज़ स्पीड लाइट की होने के बाद भी सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। Now, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon. पहला इंसान जिसने फर्स्ट मून पे गया था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गया था? ऑन 21 जुलाई 1969। What is a defined satellite? This is the next question. Define satellite. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वही प्लैनेट के जैसे, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, वो एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। जैसे हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे कि हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। सैटेलाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो हमारी अर्थ का है वो है मून, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट के लिए आर्टिफिशियल बॉडी वर्ड बोला जाता है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट। ये क्यों, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सैटेलाइट? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सैटेलाइट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सैटेलाइट? सैटेलाइट्स आर यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट। सैटेलाइट को रॉकेट कैरी करते हैं और अर्थ की ऑर्बिट में रख देते हैं। कुछ सैटेलाइट्स के नाम बताओ। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स जो हैं जो स्पेस में हैं वो है इनसेट, IRS, एड्यूसेट। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroid. Asteroids जो होते हैं सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं, स्टार्स घूमते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे एस्ट्रॉइड जैसे स्ट्रक्चर, यानी छोटे प्लैनेट जिसको माइनर प्लैनेट या प्लैनेटॉइड भी बोलते हैं, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये मोस्टली एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। पर साइंटिस्ट का ये सोचना है कि वहाँ पे ज़रूर कोई पहले प्लैनेट रहा होगा जिसमें एक्सप्लोजन होके, एक्सप्लॉइड होके, एक्सप्लोजन यानी बम के जैसे टूट जाता है वैसे एक्सप्लॉइड होके, टूट के, बिखर के वो एस्ट्रॉइड्स बने होंगे। Meteoroids. Next topic is meteoroids and meteor. The small pieces of rocks which move around the sun. अब सन के चारों तरफ प्लैनेट्स, माइनर प्लैनेट्स के अलावा रॉक जैसे लेकिन बहुत बड़े रॉक्स के पीसेस, जिसको हम यहाँ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक लिखा है, पर एज पर द यूनिवर्स बड़े बड़े पीसेस ऑफ द रॉक्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, जिसको मीटेरॉइड बोलते हैं। जब ये मीटेरॉइड अचानक अर्थ के सरफेस के पास आ जाते हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशन उनको खींचता है, दे टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट।
इसी प्रोसेस में जब वो ज़मीन पे गिरते हैं तो हवा के साथ उनका फ्रिक्शन हो जाता है, हवा में वो घुस नहीं पाते, फ्रिक्शन हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं। इसलिए हमको कभी कभी आसमान में एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीट, जब वो पूरी तरीके से जल जाते हैं और ज़मीन पे नहीं गिरते, ज़मीन पे कहीं उनको पत्थर नहीं गिर पाता है तो उसको मीटेरॉइड बोला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स अ मीटेरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ। मीटियोर यानी जब वो टोटली बर्न हो जाते हैं हवा में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करते बराबर, उसे मीटेरॉइड बोला जाता है। यानी जैसे ही हवा में इंटर किए, जल गए, आग लग गई, ख़त्म हो गया, दैट इज़ मीटेरॉइड। लेकिन कई बार वो पूरा बर्न नहीं हो पाते हैं, बड़े रॉक के टुकड़े ज़मीन पे आके गिर जाते हैं और वहाँ पे आके बहुत बड़ा गड्ढा, होलो स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको मीटियोर बोला जाता है। अभी इसको टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? ये छोटे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। मीटेरॉइड्स क्या हैं? छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पर कभी कभार हमारे अर्थ के अंदर आ जाते हैं और जल जाते हैं, अर्थ पे नहीं गिर पाते, हवा में ही जल जाते हैं, उसे मीटेरॉइड बोलते हैं। कभी वो हवा में पूरी तरीके से नहीं जलते, अर्थ के सरफेस पे आके गड्ढा बना देते हैं, उसे मीटियोर बोला जाता है। Now, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या कभी रात पे जिस दिन स्टार्स हैं पूरे आसमान में, एक बहुत बड़ा ग्लोइंग पाथ कभी देखा है? दिस इज़ नोन एज दी, उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं। गैलेक्सीज़ यानी जिसमें ऐसे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सिस्टम्स रहा करते हैं, ढेरों स्टार्स हुआ करते हैं। हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। उसे जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है, उस जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, उसे मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। इन एंशियंट इंडिया में इट वॉज इमेजिन दैट, उस हिस्से को देख के बोला जाता था रिवर ऑफ लाइट या आकाश गंगा उसे बोला जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन है, हमारा अर्थ कौन से गैलेक्सी में बिलोंग करता है? मिल्की वेव गैलेक्सी। अ गैलेक्सी क्या है? अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कितना बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आज भी उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। उसमें एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वेव गैलेक्सी। उन गैलेक्सीज़ में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मिल्की वेव गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे हमारे सोलर सिस्टम जैसी दूसरी फैमिलीज़ भी होती होगी, उसमें से हम एक हिस्सा हैं, दैट इज़ अ सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है अर्थ, और अर्थ पे हम लोग रहते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वेव गैलेक्सी, मिल्की वेव गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ इट।